ہمارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے اعلان یہ کرتے ہیں اعلان یہ کرتے ہیں ہمیں جان سے پیارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے آئیے دوستو بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں چاہتا ہوں میدان ترنم سے میدان خطابت کا سفر کیا جائے اور ایک ایسے شاندار خطیب کو آپ کے روبرو کیا جائے جس کو اللہ رب العزت نے یقیناً کفر و شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی قوم کو اجاڑنے کا ہنر دیا ہے. یہ نام کسی اور کا نہیں ہے، حضرت مولانا محمد مونس صاحب القاسمی کا ہے. اس وقت بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہے ہیں کہ حضرت والا مائک پر تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے بیٹھے ہوئے سامعین کو نوازے. ان چار مصروں کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ خطابت وجد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے. خطابت وجد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے. اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں کہ نجاشی کے آگے جعفرو تیار بن جائے، کہ نجاشی کے آگے جعفرو تیار بن جائے. آئیے دوستو استقبال کریں اپنے محبوب خطیب کا. انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا، اس کے بعد نعتیہ دور نعتیہ مشاعرے کا آغاز کیا جائے گا، پھر آپ ہوں گے اور یہ اسٹیج ہوگا، شورائے کرام ہوں گے. انشاءاللہ آپ کو رات بھر کے لیے آزاد کر دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے حضرت کا بیان بڑا قیمتی بیان ہونے والا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت کا بیان بڑی شانداری کے ساتھ سنیں کہ خدا کا نور برساتے ہوئے صلی علی نکلے، خدا کا نور برساتے ہوئے صلی علی نکلے، ضیاء دنیا میں پھیلاتے ہوئے خیر الورا نکلے. اور زمانہ جگمگا اٹھا نبی کے نور سے اس دم، شب معراج جو حجرے سے محبوب خدا نکلے. استقبال کریں حضرت مولانا محمد مونس صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے بیٹھے ہوئے سامعین کو نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في موضع آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. کتاب فطرت کے سرور پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا. فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا.
واجب الاحترام رونق اسٹیج علماء کرام حفاظ اعظام شورائے کرام اور معزز سامعین حضرات پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ انتہائی متبرک و محترم مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں تاجدار مدینہ امام الانبیاء فخر موجودات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آج آپ کا یہ پروگرام نعتیہ پروگرام ہے، نعتیہ مشاعرہ، شورائے اعظام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ پوری رات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نذرانے عقیدت و محبت سنتے رہیں گے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ میرے بزرگوں میں آپ سے عرض کر دوں، اس دنیا کا وجود جو ہوا ہے وہ محبت کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس دنیا کو رچایا اور بسایا۔ اللہ پاک کو اپنے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ کے صدقے میں اس دنیا کو رچایا بسایا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ لاکھہ لاکھ اور کروڑہ کروڑ انسان دنیا کے اندر تشریف لائے اور لاتے رہیں گے، مگر میں عرض کر دوں آپ سے کہ انسان دنیا کا جو سب سے پہلا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنایا۔ دیکھو آدم علیہ السلام کا پتلا بنا ہوا پڑا ہے، کاہے مٹی کا پتلا ہے، اب روح ڈالنے کا نمبر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی شان قدرت کے اس پتلے کے اندر روح ڈالتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر سب سے پہلے جہاں پر پڑتی ہے وہ عرش ہوتا ہے، اور عرش پر اللہ رب العالمین نے ایک کلمہ لکھ رکھا ہے، اپنا نام پہلے لکھا ہے اور بعد میں اپنے محبوب کا نام لکھ رکھا ہے۔ حضرت آدم کو پیدا فرما رہا ہے اللہ۔ حضرت آدم کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی سے انسان کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے۔ حضرت آدم کے بعد بہت سارے نبیوں کو آنا ہے۔ آدم آئیں گے، ہود آئیں گے، نوح علیہ السلام آئیں گے، داؤد علیہ السلام آئیں گے، زکریا علیہ السلام آئیں گے، یونس علیہ السلام آئیں گے، الیاس علیہ السلام آئیں گے، یوسف علیہ السلام آئیں گے، سلیمان علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ 1,24,000 انبیاء دنیا کے اندر آنا ہے۔ پہلا انسان حضرت آدم ہے جس کے اندر اللہ روح ڈالا ہے۔ نظر پہنچتی ہے عرش پر، کلمہ کون سا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ نہیں لکھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ نہیں لکھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ نہیں لکھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل ذبیح اللہ نہیں لکھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ نہیں لکھا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کو آنا ہے۔ اللہ نے
रसूल अल्लाह, ये मेरे नबी की शान। अल्लाह क्या बताना चाहता है? अल्लाह ये बताना चाहता है कि देखो हुजूर और मेरा चहीता नबी, उसके सदक़े में सारी इंसानियत को हमें पैदा करना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई, ए बेटा, जब कोई दुआ करना हो और जब अल्लाह पाक से कोई तेरी हाजत हो जाए, ज़रूरत पड़ जाए, तो इमामुल अंबिया फ़ख्र मौजूदात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से दुआ करना, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। वास्ते से दुआ करना, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। क्यों? हदीस में आता है, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, अगर अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर तशरीफ ना लाना होता तो ये कायनात वजूद में ना आती, ये शजर हजर ना होते, ये मलको फलक ना होते, ये ज़मीन व आसमान ना होता, ये सूरज ना होता, ये सितारे ना होते, ये चांद ना होता। कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी का सदका है। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये ज़मीन व आसमान, ये मशरिक़ व मग़रिब, सारी कायनात मेरे नबी का सदका है। अगर नबी को दुनिया में ना आना होता तो अल्लाह पाक इस कायनात को सजाता, रचाता, बसाता ना। और यही वजह है अल्लाह पाक ने अपने नाम के साथ अपने हबीब के नाम को जुदा नहीं किया। आप पढ़ते होंगे सूरह फातिहा पढ़िए, जहाँ अल्लाह का जिक्र है वहीं रसूलुल्लाह का जिक्र है। अज़ान में जहाँ अल्लाह का जिक्र है वहीं रसूलुल्लाह का जिक्र है। कलमे में जहाँ अल्लाह का जिक्र होगा वहीं रसूलुल्लाह का जिक्र होगा। नमाज में जहाँ अल्लाह का जिक्र होगा वहाँ रसूलुल्लाह का जिक्र होगा। अत्तहियात में अगर अल्लाह का जिक्र है तो वहीं रसूलुल्लाह का जिक्र है। गर्ज़े की रसूलुल्लाह का जिक्र अल्लाह ने अपने साथ किया है। अल्लाह खालिक़े कायनात है, रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह पर खुदाई खत्म है और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मुस्तफ़ाई खत्म है। इसीलिए कहा जाता है अल्लाह के बाद अगर कोई ज़ात सबसे ज़्यादा मोहतम बिशान है, अज़मत वाली है, तो वो जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। लोगों ने तारीफ की, कहते हैं कलमकारों ने कलम तोड़ दिए, मुफस्सिरीन तफसीर करते रहे और बड़े बड़े मदा सराई करने वाले हुजूर की तारीफ और तौसीफ करते करते थक गए और आखिर में कहने पर मजबूर हो गए कि कलम अशजार हो, सारे समुंदर रोशनाई हो, मुकम्मल हो नहीं सकती मगर सीरत मोहम्मद की। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बज़्म है, इसमें जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होना है। इतने मोहतम बिशान नबी की उम्मत में अल्लाह पाक ने हमें और आपको पैदा फरमाया है। बताओ अल्लाह पाक का एहसान है या नहीं है? एहसान है। और इस चीज़ का तकाजा ये है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, आपके बताए हुए रास्ते के मुताबिक चले। कुरान कहता है कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और कह दीजिए ए इंसानो अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो। और कुरान पाक कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह पाक तुमसे मोहब्बत करने लगे, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना ले, अल्लाह तुमको अपने करीब कर ले, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ऐ नबी कह दो कि मेरी इत्तिबा करें लोग, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगेगा। तो रसूलुल्लाह की इत्तिबा करना, अल्लाह पाक से मोहब्बत करना है। बताइए हम और आप रसूलुल्लाह की इत्तिबा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम अपने गिरबान में झांक करके देखें, वो मुहसिने इंसानियत जो हमारे लिए रातों को रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, अल्लाह से हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करता रहा, हमारी कामरानी और कामयाबी के लिए वो रोता रहा और हमारे लिए वो तड़पता रहा। बताइए हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? कौन सा उसके तरीके पर हम अमल कर रहे हैं? आज हमारे मुआशरे के
اندر برائیاں پھرب رہی ہیں، آج ہم تعلیمات نبوی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ہم شیطان کے بہکاوے میں چلے جا رہے ہیں، آج ہمارے اندر رسومات پیدا ہو رہی ہیں، ہماری صبح رسول اللہ کی صبح کے خلاف ہو رہی ہے، ہماری شام رسول اللہ کی شام کے خلاف ہو رہی ہے، ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو رہی ہے، ہماری شادی بیاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی نظر کرم ہم پر ہو جائے، مصائب ہم سے دور ہو جائیں، پریشانیاں ہم سے دور ہو جائیں۔ یاد رکھیے اس وقت تک ہم سے پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی جب تک ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل نہ کریں۔ آج ہماری مائیں بہنیں اور ہماری بیٹیاں آج اس محفل کے اندر پردہ میں بیٹھی ہوئی اس پروگرام کو سماعت کر رہی ہیں، سن رہی ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے میری ماؤں بہنوں، یاد رکھو ایک وقت تھا آپ کا کوئی وقار نہیں تھا، آپ کی کوئی عزت نہیں تھی، سماج کے اندر آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ جانور سے بدتر آپ کے ساتھ لوگ سلوک کیا کرتے تھے، آپ بازاروں کے اندر بیچی جاتی تھی، اور عرب کے اندر تو یہ دستور تھا کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ نے انسانوں کو بتلایا، آؤ لوگوں دیکھو جس شخص کے گھر کے اندر 2 یا 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے اور ان کو اچھی تعلیم دے اور تہذیب و طریقہ سکھلائے، اور جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنتی ہونے کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ عزت و وقار کس نے عطا کیا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کیا۔ وہ معاشرہ تھا جہاں پر ماں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جہاں پر بیٹی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جہاں پر بہن کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامہات الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیروں کے تلے ہے۔ یہ وقار، یہ مرتبہ اور یہ حیثیت جو عورتوں کو، معاشرے کی عورتوں کو ملی ہوئی ہے، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، آپ نے انسانیت پر احسان کیا ہے، اور انسانیت کے ہر فرد پر احسان آپ کا ہے، مردوں پر آپ کا احسان ہے، عورتوں پر آپ کا احسان ہے، بچوں پر آپ کا احسان ہے، یہاں تک کہ جانوروں پر آپ کا احسان ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک اونٹ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پر آتا ہے اور کچھ کہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یہ کہہ رہا ہے جبرائیل نے مجھے بتلایا ہے، یہ آ کر کے کہتا ہے کہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے۔ حضور نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ تو اس کو چارہ کم دیتا ہے اور اس سے کام زیادہ لیتا ہے، آج سے تو اسے چارہ زیادہ دے گا اور اس سے کام کم لے گا۔ بتائیے میرے نبی کی ذات جانوروں کے لیے رحمت ہے یا نہیں رحمت ہے؟ ارے میرے نبی کی ذات مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بے سہاروں کے لیے سہارا ہے۔ وہ مزدور جسے زمانے جاہلیت کے اندر حضور کے آنے سے پہلے لوگ مزدوری نہیں دیا کرتے تھے، صبح سے شام تک کام کراتے، چائے پینا اور ناشتہ کرانا دور کی بات ہے، جانوروں کی طریقے سے کام لیتے اور پھر اسے مزدوری نہیں دیا کرتے، دھکے مار کر کے اسے بھگا دیا جاتا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ نے انسانوں کو انسانیت سکھلائی اور آپ نے فرمایا اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دی جائے۔ بتاؤ میری نبی کی ذات اس مزدور کے لیے رحمت ہے یا نہیں ہے؟ ساری کائنات کے لیے میرے نبی کی ذات رحمت ہے، آپ رحمت للعالمین ہے۔ میری ماں بہنوں سنو، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ اب بتلاؤ جو ذات تم کو اتنے اونچے مقام پر پہنچا رہی
रही है, इतने मर्तबे पर पहुंचा रही है, इसकी तालीमात में से तुम्हें क्या मिला है? क्या आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे मोहतरम का नाम क्या है? क्या आपको पता है आपकी वालिदा का नाम क्या है? क्या आपको पता है कि आपकी कितनी बेटियां थी, आपकी कितनी बीवियां थी, आपकी कितनी औलाद थी? क्या आपको पता है कि आप इस वक्त पैदा हुए? क्या आपको पता है कि आप इस वक्त दुनिया के अंदर तशरीफ लाए? क्या आपको पता है आपने हिजरत कम फरमाई? क्या आपको पता है आपने कितनी जंगें लड़ी हैं? क्या आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी तालीमात के ताल्लुक से कुछ पता है? अफसोस तो ये है जिस नबी की उम्मत में अल्लाह ने पैदा फरमा करके हम पर एहसान जतलाया है, आज हम उस एहसान को फरामोश कर रहे हैं। आज हमारी सुबह रसूल के तरीके के खिलाफ गुजर रही है। आज हमें नाम याद होता है तो क्रिकेटरों का नाम याद होता है, सिनेमा वालों का नाम याद होता है, फिल्मी दुनिया में कौन सा एक्टर क्या कारनामे अंजाम दे रहा है, किसकी शादी किसके साथ हो रही है और किसके कितने बच्चे हैं और कौन सी फिल्म कब रिलीज हो रही है और कौन सी फिल्म कब रिलीज हुई थी, इन सारी बातों का हमें इल्म है। मेरे नौजवानों को एक एक क्रिकेटर का नाम पता है और उसके मुतालिक तमाम सारी चीजें पता है और तमाम सारे फिल्मी दुनिया के अदाकारों के नाम पता है। अगर नाम नहीं पता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलादों का नाम नहीं पता है, अगर नाम नहीं पता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों के नाम नहीं पता है, आपकी फूफियों के नाम नहीं पता है, आपके वालिदैन के नाम नहीं पता है, आपकी नाना और नानी के नाम नहीं पता है। आपकी तालीमात से मुताल्लिक हम दूर खड़े हुए हैं, हमें कुछ पता नहीं है और हम कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, जरा गौर करो, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का मैदान होगा और हौजे कौसर पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा होंगे। आप इस मुंह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहेंगे, हम और आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर वो चीजें पैदा हो गई है जो इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखती। हमने यूरोप का कल्चर अपना लिया, मगरिबी तहजीब को हमने अपना लिया, हमने मगरिबी तहजीब को अपना लिया, उनके पहनावे को अपना पहनावा समझा, उनके खाने को अपना खाना समझा, उनकी चाल को अपना चाल समझा और उनके रस्मो रिवाज को अपना रस्मो रिवाज समझा। हमने नहीं समझा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को नहीं समझा। अरे सहाबा से सीखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा पर सहाबा कुर्बान हो जाया करते थे। अरे सहाबा इस आयत को पढ़े हुए थे कि कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। मेरा नबी मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है और तकरीर कर रहा है और मस्जिद के किनारों पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ और लोग बैठ गए। हुजूर किसी काम से मस्जिद के बाहर निकले तो देखा एक सहाबी मस्जिद के एक पैर मस्जिद के बाहर है और एक पैर मस्जिद के अंदर है, वैसे ही बैठा हुआ है। हुजूर ने पूछा कि तुम यहाँ पर इस तरह क्यों बैठे हो? कहा या रसूलुल्लाह, जब आपका फरमान आ गया, जब आपकी आवाज कानों के अंदर पड़ गई कि बैठ जाओ तो मेरी मजाल कहाँ मैं खड़ा हो जाऊं। आप आगे बढ़े, देखा बकरियों के बाड़े में एक सहाबी हजरत अबू दरदा बैठे हुए हैं। आपने अर्ज किया, आपने उस सहाबी से पूछा कि ऐ अबू दरदा तुम यहाँ क्यों बैठ गए? या रसूलुल्लाह, शायर कहता है कि दर्दमंदों से न पूछ कहाँ बैठ गए, दर्दमंदों से न पूछ कहाँ बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत है जहाँ बैठ गए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, आपके तरीके पर जान को कुर्बान कर देने के लिए सहाबा की जमात तैयार रहा करती थी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हुजूर जब जंग में निकला करते थे तो मर्दों को छोड़ दो, बच्चे तैयार रहा करते थे जंग में जाने के लिए। वो औरतें उनके ईमान पर कुर्बान जाऊं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपना दूध पीता बच्चा कर दिया करते थे। या रसूलुल्लाह इसे लेते जाइए, जब आपकी जानिब कोई तीर आएगा तो मेरे बेटे को लगा दीजिएगा। कल क़यामत के दिन मैं कह सकूंगा कि नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए मेरा बेटा शहीद हुआ है, कल मैं शहीद की माँ कहलाऊं। ये जज्बा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर कुर्बान होने का। लेकिन आज हमारी हालत ये
है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल नहीं उतारते हैं, रसूलुल्लाह के अतवार हमारे अंदर नहीं है, रसूलुल्लाह के अखलाक हमारे अंदर नहीं है, रसूलुल्लाह के किरदार हमारे अंदर नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया था लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तुम्हारे लिए नमूना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को नऊज़ बिल्लाह पीछे छोड़ रहे हैं और यूरोप कल्चर को हम अपना रहे हैं। वो कैसा पहनते हैं वैसा ही हम पहनेंगे, वो कैसा नाचते हैं वैसा ही हम नाचेंगे, वो कैसा बजाते हैं वैसे ही हम बजाएंगे, वो कैसा चलते हैं वैसे ही हम चलेंगे। वो खड़े खड़े खाना खाते हैं, हम खड़े खड़े खाना खाएंगे, वो खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, वो खड़े खड़े नाच नाच कर अल्लाह पाक की नियामत की बेहुरमती कर रहे हैं। हम भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, वो बारीक पहनावा पहन रहे हैं। हमारे मुआशरे की, हमारी कौम की बेटियां आज सीरियल देख करके और यूरोप का कल्चर अपना करके, उनकी तहजीब और तरीके को अपना करके वो पहनती है नंगा पहनावा, बारीक पहनावा। हमारी माएँ बहनें और हमारे कौम की बेटियां जिनको अल्लाह पाक ने और अल्लाह के रसूल ने मर्तबा और इज्जत अता फरमाई थी, आज यूरोप कल्चर अपना रही है और ऐसा पहनावा पहन रही है जिससे बदन छलक रहा है, जिनसे बेहयाई आम हो रही है। ऐसा पहनावा, आधा पहनावा पहन रही है या इतना बारीक लिबास पहन रही है जिससे बदन के नशेबो फराज छलक रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब औरतें ऐसा पहनावा पहनेंगी कि गोया कि वो नंगी नजर आ रही है। क़यामत के करीब मर्द औरतों वाला लिबास पहनेंगे और औरतें मर्द वाला लिबास पहनेंगी। ये बिल्कुल बरहक बात सच्ची साबित हो रही है। आज वो जमाना आ गया है कि मेरी माएँ बहनें हमारे कौम की इज्जत और आबरू यूरोप का कल्चर अपना रही है, उनकी तहजीब और तरीके पर अपनी जान को नछावर कर रही हैं। आज इन माओ बहनों बेटियों के अंदर, हमारी कौम के नौनिहालों के अंदर इस्लामी तालीम ना होने की बुनियाद पर आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हमारी कौम की बेटियां देखो कैसा बहक रही हैं, ईमान तक अपना बेच रही है, ईमान बेच रही है। कितने वाक़यात ऐसे रोनुमा हुए जिन वाक़यात के अंदर हमारी मुसलमान कौम की बच्ची गैरों के साथ रंगरलियां मना रही है, गैरों के साथ शादी रचा रही है, इस्लाम को खैर बात दे रही है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, जरा गौर करो, इस्लाम तो मजहब है जो हमेशा बुलंद रहता है और इस्लाम का मानने वाला कभी इस्लाम से बहकता नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमारी तालीमात इस्लामी नहीं है। हम मुसलमान के घर में पैदा हो करके अपने आप को मुसलमान कहने लगे। हमारा नाम तो आयशा हो गया, हमारा नाम तो रुकैया हो गया, हमारा नाम तो ज़ैनब हो गया, हमारा नाम तो उम्मे कुलसूम हो गया और लड़कों में हमारा नाम तो अब्दुर्रहमान हो गया, हमारा नाम अबू बकर हो गया, हमारी नाम उमर हो गया, हमारा नाम उस्मान और अली हो गया। लेकिन उस्मान और अली वाले किरदार नहीं है, हज़रत किरदार नहीं है, हज़रत हफ्सा वाले किरदार नहीं है और हज़रत हफ्सा वाले किरदार नहीं है, हज़रत खदीजतुल कुबरा वाले किरदार नहीं है। हम तो कहां से कहां पहुंच गए। हमने गैरों की तहजीब और तरीका अपना लिया और हमने इस्लामियात के मुतालिक जरा भी गौर नहीं किया। हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, हमारी बच्चियां कहां जा रही हैं। दीन की तालीम ना होने की बुनियाद पर आज हमारी बच्चियां बहक रही हैं। जब गैरों के कब्जे में जाती है और इस्लाम के मुतालिक को वो कोई नुक्ताचीनी करता है, क्योंकि इस्लाम के मुतालिक उन्हें मालूमात नहीं है, इसलिए बहक जाती हैं। वो भी इस्लाम पर एतराज करने लगती है। अरे सोचो, गौर करो, कौन सी ताकत थी जो हजरत बिलाल को तपती हुई रेत पर लिटा दी थी, पर भी हजरत बिलाल के जुबान से अहद कलमा निकलता था। एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, एक बार इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, एक बार रसूलुल्लाह की गुलामी को तस्लीम कर दिया, तो फिर वो सर दूसरे दरबार में नहीं जा सकता। हजरत बिलाल हबशी को तपती हुई रेत पर लिटा करके खींचा जाता, उन पर अंगारे रखे जाते, उन पर गरम गरम पत्थर रखे जाते, लेकिन इस्लाम से नहीं फिरते। हजरत सुनैरा की आंखें निकाल ली गई, हजरत सुमैया के दो टुकड़े कर दिए गए, हजरत लुबाइब की चमड़ी उधेड़ दी गई, हजरत खुबाइब को सूली पे चढ़ा दिया गया और सिर्फ ये कहा जाता था कि सिर्फ ये कहा जाता
चाहता था कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा छोड़ दो, जान तो दे दी और जान को देना गवारा कर लिया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा नहीं छोड़ा। ये वो कलमा है जो दिल के अंदर इसकी हकीकत बस जाती है तो जान तो जा सकती है, लेकिन इस्लाम नहीं छूट सकता है। आज हमारी बेटियां जो हमारे कौम की आबरू और इज्जत है जो गैरों के हाथों में जा रही है, वो इस बुनियाद पर कि हमने मुसलमानों के घर में जन्म ले लिया, हम पैदा मुसलमानों के घरों में हो गए, लेकिन इस्लाम की तालीमात हमको नहीं मिली है। ऐसी वजह से आज हमें सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। आज ताउन जैसी वबाएं फैल रही है, नए नए अमराज फैल रहे हैं। हुजूर ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा जब बेहयाई आम हो जाएगी, औरतें लड़कियां रोडों पे और गलियों के अंदर ज़माने जाहिलियत की तरीके से फिरने लगेंगी। जैसा है कि कुरान ने कहा है मुस्लिम और मुसलमान औरतों के लिए कि वला तबरुजना तबरुजल जाहिलियतिल ऊला, ये मुसलमानों और मुसलमान के घर की औरतों खवातीन तुम ज़माने जाहिलियत की तरीके से बनाओ श्रृंगार करके बाहर ना निकला करो। वक़रनु फी बुयूतिकुन, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर ये है कि तुम अपने घर के अंदर जाए करार पकड़ लो, अपने घर के अंदर रहो, ज़माने जाहिलियत की तरीके से बनाओ श्रृंगार करके बगैर किसी जरूरत के बाहर ना निकलो। आज हमारी कौम की लड़कियां बेटियां स्कूल जा रही है, माँ बाप को धोखा दे रही हैं, रेस्टोरेंट में बैठी हुई हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई है, धोखा कर रही है, इस्लाम के खिलाफ जा रही है। क्यों? इस्लामी तालीमात नहीं है। मुसलमान के घर में पैदा हो गई हैं, लेकिन इस्लाम की तालीमात नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ उन गार्जियंस से, उन सरपरस्तों से जो माँ बाप हैं, जिनके औलादें हैं, याद रखिए इस बात को कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रियायतिही, कि तुम में से हर शख्स निगहबान है, हर शख्स से उसके मातहत के बारे में सवाल किया जाएगा। चुनांचे बाप से उसके बेटे के बारे में पूछा जाएगा, शौहर से उसकी बीवी के बारे में पूछा जाएगा, माँ से उसकी बेटी के बारे में पूछा जाएगा, बड़े भाई से जिसकी कफालत में छोटा भाई है, छोटे भाई के बारे में पूछा जाएगा, एक मालिक से उसके नौकर के बारे में पूछा जाएगा। याद रखिए मेरे बड़ों, याद रखो मेरी माओ, और याद रखो मेरे बुजुर्गों, अगर हम सज्जे में पड़े रहे और दिन रात हम इबादत करते रहे, हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं सिखाया, तो याद रखिए बच नहीं पाएंगे। ये सज्जे हमें नजात नहीं देंगे, ये नमाजें हमें नजात नहीं देंगे। कल क़यामत का दिन होगा और उस बेटे का हाथ होगा और बाप का गरीबान होगा और रब्बे ज़ुल जलाल का दरबार होगा। उस दरबार में वो बेटा बाप से कहेगा, ऐ मेरे बाप, तूने मुझे हिंदी पढ़ाया, अंग्रेजी पढ़ाया, तूने मुझे डॉक्टर बनाया, तूने मुझे इंजीनियर बनाया, तूने मुझे IAS बना दिया, तूने मुझे PCS बना दिया, तूने मुझे बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाई। यकीनन लोग मुझे सलाम करते थे, मैं जाता था मुझे कुर्सी देते थे, मैं जाता था मेरे लिए खड़े हो जाते थे, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम जरा मुझे ये बताओ कि मुझे क़यामत की तैयारियों में से क्या चीज हमें बताई थी, कल दुनिया के अंदर जीने के मकसद के ताल्लुक से कौन सी चीज बताई थी। आज बताओ मेरे पास क्या है, मैं खाली हाथ हूँ तो सिर्फ तेरी वजह से हूँ। अगर तूने मुझे डॉक्टर बनाया था तो साथ में मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम भी देता, इस्लामी तालीमात भी सिखलाता, जिंदगी जीने का इस्लाम के मुताबिक तरीका बतलाता, तो आज मैं जहन्नम का मुस्तहिक ना होता, आज मैं भी जन्नत का मुस्तहिक होता। लिहाजा है मेरे बाप, मैं जहन्नम का मुस्तहिक हूँ, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ तुझे भी चलना पड़ेगा। याद रखिए कल क़यामत के दिन हर बाप से उसके बेटे के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, हर माँ से उसकी बेटी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। हमारे सजदे हमें बचा नहीं पाएंगे। हमारे लिए फर्ज है कि जहाँ हम अपनी फिक्र करें, अपने बच्चों की फिक्र करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों, खुद जहन्नम की आग से बचो और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। इस्लामी तालीमात घरों के अंदर लाओ, शादियों को आसान कर दो। ये डीजे बजाना इस्लाम के खिलाफ है, ये दहेज और ये रसूमात और मांग करना लड़की वालों से, ये इस्लाम के खिलाफ है। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये गैरों के यहाँ से आ रहा है। हमने यूरोप कल्चर
अपनाया, हमने अदर कंट्रीज के कल्चर को अपना लिया, हमने गैरों का तर्ज अमल अपना लिया। वो पैसा मांगते हैं तो हम पैसा मांगने लगे, वो डिमांड 2-4 लाख की करते हैं हम भी करने लगे, वो गाड़ी की डिमांड करते हैं हम भी गाड़ी की डिमांड करने लगे। याद रखो इस्लामी तरीका ये नहीं है। और मेरे हुजूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। याद रखो अगर मगरबी तहजीब को अपनाया जाएगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे उसका नाम अब्दुर्रहमान हो, चाहे उसका नाम आयशा हो, चाहे उसका नाम जुनैद हो और चाहे उसका नाम हफ्सा हो, अगर मेरी माएँ बहनें और मेरे नौजवान अगर यूरोप कल्चर को अपना रहे हैं, खैरों के तहजीब और तरीके को अपना रहे हैं, याद रखो नाम मुसलमान होने से काम नहीं चलने वाला है। अल्लाह का नबी फरमाता है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, तुमने गैरों की मुशाबिहत इख्तियार की थी, जो हश्र गैरों का होगा वही तुम्हारा भी होगा। याद रखिए खुदा फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, दो जहां की कामयाबी अगर तुझे दरकार है, थाम ले उनका दामन जिनका मोहम्मद नाम है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।